Praise the Lord. God is good all the time. ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਵੇ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈਚਰਡੇ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਆਮੀਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਤੂੰ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। हे मेरे परमेश्वर तेरा शुक्राना खुदा बाप, तेरे वचन के द्वारा तू इत्थे मौजूद आ। तेरा वादा वा बड़ा ही प्यारा वादा जिसनों असीं भुल नहीं सकते। तू साडे अंदर आ, तू साडे नाल आ, तू साडे अगे अगे चलदा गया। यहोवा तेरा नाम मुबारक होवे यीशु। तू सब नूं बरकत दे पिता परमेश्वर। असीं तेरे घर आए आ खुदा बाप। संडे दा दिन आ, फ्राइडे दा दिन आंदा, थर्सडे दा, प्रभु नो मैटर असीं एवरी डे तेरे कोल आंदे। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਲੈ ਲਓ ਅੱਜ। ਹੋਰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਯਾਰਾਵਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਯੈਸ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मन नूं खोल दे प्रभु जी। होर आकाशाला दा बरबा आकाशलबो होर यीशु तेरा नाम मुबारक होवे। तू ही राजाओं का राजा, तू ही प्रभुओं का प्रभु। प्रभु जी तेरे अगे अरदासा लेके आने, सारा परिवार तेरे अगे बैठा पिता परमेश्वर, अरदासा लेके आया सब दियां डिफरेंट डिफरेंट। तू जानदा खुदा बाप किन्ना दी की अरदासा खुदा बाप। होर यीशु तेरा नाम मुबारक होवे पिता परमेश्वर। सारे बीमारां नूं यीशु तेरे नाम दे विच दूरी होवे बीमारी। प्रभु जी बीमारी खड़ नहीं सकती खुदा बाप। बंद दरवाजे प्रभु जी तेरे अगे बंद नहीं रह सकते, वो खुल जाते रहे करो खुदा बाप। यीशु तेरा नाम मुबारक होए। वर्शिप टीम नूं ब्लैस कर प्रभु जी। असी आराधना जिहड़ी करिए ना, असी आत्मा और सच्चाई दे नाल करिए। तैनूं पसंद आवे सानूं सिखा खुदा बाप, सानूं गाना वजाना सिखा जिस तरह प्रभु जी स्वर्गां दे विच प्रभु जी तेरी महिमा हुंदी है। तेरा नाम मुबारक होए खुदा बाप। तू बहुत ही प्यारा परमेश्वर आ। शुकराना करदे कि तू सानू चुन लिया कि तुसीं तेरे नेड़े आ गए खुदा बाप। पास्टर नूं ब्लैस कर प्रभु जी। वचन लेके आया बाइबल दे विचों पिता परमेश्वर। तू क्या तू मैनू पुकार ते मैं तेनू उत्तर देवांगा, तेनू वो गल्लां दसांगा जिन्हां बारे तू जानदा तक नहीं है। तू सानू गुंजियां गल्लां सिखा, साडीआं अखां अंदरूनी अखां नूं खोल खुदा बाप। अपने वर्गा बिना तेरा बहुत शुकराना। सब नूं ब्लैस कर पिता परमेश्वर, और खुशी दे नाल तेरी आराधना करिए, विश्वास दे विच वधदे जाइए प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। सारी संगत कहे आमीन। यस, मंग लेने ते पा लेने हैं। तेरा शुकराना हो यीशु। हैव अ सीट। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ
3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਸਸ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਣਾ ਵਾ। ਇਬਰਾਨੀ ਚੈਪਟਰ 11 ਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਸਸ ਪੜਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਨੋਕ ਬਿਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੂਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੋ ਮੈਟਰ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कोड़े विरुद्ध तेरे होंगे। जदों बल है तेरे यहोवा, फिर कोड़े विरुद्ध तेरे होंगे। तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। बेड़ी डुबदी भी तर जाएगी, साह टुटदी भी जुड़ जाएगी। बेड़ी डुबदी भी तर जाएगी, साह टुटदी भी जुड़ जाएगी। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कोड़े विरुद्ध तेरे होंगे। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कोड़े विरुद्ध तेरे होंगे। तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे।
जीवन च आएगी बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। जदों जीवन च आएगी बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਦਾਗ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਦਾਗ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। तेरे आपे ओ काज सवारे, तेरे दर्शन ओ पूरे करेगा। तेरे आपे ओ काज सवारे, तेरे दर्शन ओ पूरे करेगा। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 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 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ। ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ, ਲੂਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਨਕੰਪਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਵੰਤ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਟਲਤਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਵੇ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੰਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ, ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਬਬਲੀ ਨੂੰ, ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਏ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਨਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਲਟਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਬੀਲ ਕਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਭਰਾ ਆਲਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਰ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਨੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਰਮ ਲੁਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੀਡਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ।
ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਘੜੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਕੇ ਨਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। May God bless you all. हेलो, साढ़े सारे कहो यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है।
होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी ਲੱਭਦਾ ਯਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਯਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਈਓ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਈਓ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ हर पासे होता ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लोंदे जावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लोंदे जावांगे लिखना ते गौना सानू ओही है सिखाउंदा लिखना ते गौना सानू ओही है सिखाउंदा ओही साडा सुर नाले नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना हो मैनू बस कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना हो मैनू बस कहता है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमेन। डू यू बिलीव दैट? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ओ मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना थकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़िया। ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी
गए, तर गए, दुश्मन हार गए ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यसु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, मेरे जहे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। यसु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, मेरे जहे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। मेरे जहे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। ओ ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना, यसु जिहा सोना सोना है खुदा। ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना, यसु जिहा सोना सोना है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बरकत आई है खुदा। ओ बरकत आई है खुदा। हालेलुया। Wonderful, wonderful. Praise the Lord. खुदावन तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं दीपक. Good job. And by Roshan and Pratap, I'm so proud, sitting here and seeing you do all this wonderful work, and just my heart rejoices. दिल मेरा खुश हैगा। और खास कर इस मैसेज के लिए जो गीत आया, खुदावंद असी तेरे नाम जुड़ दुआ करते हैं, बंधन खुदावंद टूट जान, खुदावंद कोविड का बंधन टूट जाए, खुदावंद ऐसा जोर खुदावंद मुका दे, खुदावंद यीशु तेरे नाम च असी मंग लेने और पाने हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू साडे गम, साडे आंसू, साडे खुदावंद दुख सारे खुदावंद खत्म करने का वादा करना है। खुदावंद जेड़ा तू जीवन देन का वादा किया, वो खुदावंद ऐसा भरपूर जीवन है खुदावंद, जिहदे च खुदावंद लाइफ इन इट्स फुलनेस खुदावंद तू सानू देन का वादा किया। We love you, Lord. We thank you, and we thank you for your goodness in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hello. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਿਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲੂੰਗੀ, ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਨਸਿਸ 19 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, करना ये विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बन यसू देना। जो विश्वास कर देने ओ बन यसू देना। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ। ਲੂਤ ਬੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਰਨਾ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 21 ਵਰਸ 21 ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ। ਦ ਚੁਆਇਸ ਇਜ਼ ਅਵਰਸ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹਟ ਜਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢੀ ਆ।
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ। हालेलुया। सॉरी मैं पंजाबी च बोल रहा, आज मैं थोड़ी हिंदी बोल लूंगा। हमारे साथ भाई अल्टा करीम, वेलकम ब्रदर। वीक और वीक एंड हाफ अगो भाई ने प्रभु को अपने जीवन में लिया और वो कह रहा है मुझे मालूम नहीं कि खुदा ने मेरे अंदर क्या कर दिया है, खुदा मेरे अंदर आ गया है। वो सारी बातें जो मैं करनी चाहता था नहीं होती थी, वो खुदा ने ऐसे कर दी है। तो भाई से मैं मिला और भाई ने बोला, मैंने कहा पंजाबी समझते? कहता नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलो। तो सॉरी, आज मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। हिंदी तो हम समझ लेते हैं, पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है, तो थोड़ी पंजाबी और हिंदी मिक्स करेंगे, पर आपको जरूर समझ लगेगी। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं आपके लिए। खुदावंद दरवाजे पर खड़ा खड़खड़ाता है और आपने अपने दिल का दरवाजा खोला। ओके। He's God's chosen one. I told him about my dream, that I saw Lord Jesus in my dream. I told him personally. He said God has planned. So I don't know he's here today. I don't know probably how I met or probably. And maybe I came to Calgary for this. I don't know why I moved to Calgary 11 years ago. He came from Winnipeg for the same reason. Say everything. Let's praise God. Say everything. Hallelujah. Hallelujah. It's such a blessing for Brother Pratap when he see. भाई प्रताप के लिए भी ये बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि उनका हार्ट है कि वो खुदा का वचन दूसरों के साथ शेयर करें, और उससे भी उतनी ही खुशी है जितनी आपको है, क्योंकि वो भी चाहता है कि सभी लोग जान ले, और वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी बसेस में वो सभी को बताए। और इसी पर्पज के लिए खुदावंद इन्हें भी इंडिया से विनीपेग और विनीपेग से यहाँ लाया था। ये खुदा की प्लान है। और भी जो लोग कैलगरी आए हैं, मैं आज प्रभु के नाम से अनाउंस करता हूं, वो सब इसीलिए आए हैं कि वो प्रभु की मुक्ति ले। हालेलुया। सारे हम सभी विश्वास के साथ बोलेंगे, जिनको भी खुदा यहां लेकर आया है हमारे बीच में, उन्हें इसलिए लेकर आया है कि वो भी जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, और वो जरूर बनेंगे। हम लोगों की दुआएं खुदावंद जरूर सुनेगा। आमीन। भाई के लिए शुक्रगुजार हूं, गुरप्रीत और रीना के लिए। मैंने इनकी गाड़ी भी नहीं पहचानी, खुदा ने इन्हें अच्छी सी गाड़ी दी है, और आई थैंक गॉड कि ये स्वीट नहीं लेकर आए, क्योंकि पिछली दफा बशीर स्वीट लेकर आया। हमें यहाँ पर मनाही है, हम लोग यहाँ पर अभी खाना नहीं शेयर कर सकते। खुदा का शुक्र है उसने दिया, फिर से खाएंगे, स्वीट टाइम आएगा। पर मैं चाहता हूं कि बस हम सिर्फ शुक्रगुजारी लेकर आए, खाना नहीं लेकर आए, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, हम सर्व नहीं कर सकते। तो खाना आपने हमें बस स्पिरिचुअल तौर पर, फर्जी तौर पर हमने खा लिया, देख लिया, खा लिया। और खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे, ये गाड़ी आपके लिए बड़ी बरकत का कारण हो। छोटी सी दुआ कर कर हम वचन में जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे खुदा हम अपने वचन से हमें क्या सिखाता है। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं, जैसे भाई प्रताप ने कहा, खुदावंद तेरे बच्चों को तो समुंदर भी नहीं रोक पाया, तो ये कोरोना क्या है। खुदावंद हम आए हैं तेरे घर में, खुदावंद हम गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो करना चाहते हैं। तूने कहा है कि हम उन्हें फॉलो करें, और तूने ही हमारे लिए ये रास्ता खोला है कि हम तेरे घर में आकर तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। तो खुदावंद मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं विश्वास के साथ दुआ करता हूँ, जल्दी से जो मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं वो भी आना चाहते हैं, खुदावंद आप सारे ये रास्ते खोल दें, ये कोरोना खत्म कर दें, कि हम आपके घर में फिर से मिलकर आपकी ऐसे ही आराधना और स्तुति करें। इस टेक्नोलॉजी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद इसके बावजूद
हम लोग ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, BC, कहाँ कहाँ पर प्रभु जी हम आपका वचन शेयर कर सकते हैं, आपकी उम्मीद शेयर कर सकते हैं। तो खुदावंद भाई बाबी के लिए धन्यवाद देते हैं जो सब टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर रहे हैं। प्रभु आप अपने बेटे को ब्लेस करें और खुदावंद अपने भीड़े रास्ते पर प्रभु जी जो नैरो वे है खुदावंद उस पर उसे चलाते रहना और अपनी आशीष और बरकत से उसे भरते रहना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। भाई जो मैं ये पढ़ूंगा ये तो मुझे पंजाबी में पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम बुक ऑफ फैक्ट चैप्टर, सिस्टर कैम डू यू हैव हिंदी बाइबल? ओके, नो आप रीड करें प्लीज, माइक दे दें सिस्टर कैम को। हम चेले बुक ऑफ फैक्ट चेलियां दे करतब, हिंदी में क्या कहते हैं, रसूलों के करतब, रसूलों, प्रेरितों के काम उसका 6वां भाव, उसकी 1 से लेकर 7 आयत हम पढ़ेंगे वचन से। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स आफ्टर गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। अगर जिन्हां दे कोले पंजाबी दी बाइबल हैगी आ उन्हां दा पेज हैगा 217 पेज। ऑन नहीं हुआ लगता। बाबी कुड यू प्लीज टर्न द हैंड हेल्ड ऑन। या 7 सेवकों का सुना जाना। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्राहिम भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विश्वासियों की सुधि नहीं ली जाए। तब नाबारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, और यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों की जो पवित्र आत्मा और बुद्धि में परिपूर्ण है चुन लो कि हम इन काम पर ठहरावा दें। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने सितफुर नामक एक पुरुष को जो विश्वास का और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और पुरखस और निकानोर और तिमोन और परिसान और अन्यंतवासी नकुखलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों ने सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों की गिनती बहुत ही बढ़ गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इसको मत मनाने लगा। आमीन आमीन आमीन। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭਲਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਉਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤੀਫਨਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ, ਪ੍ਰੋਖਰੁਸ, ਨਿਕਾਨੋਰ, ਤਿਮੋਨ, ਪਰਮਨਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਾਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ स्वीकार किया। रिमेंबर, जब हम प्रेरितों के काम से, बुक ऑफ एक्ट से देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो अर्ली चर्च था, कैसे खुदा का आत्मा काम कर रहा था, कैसे खुदा का आत्मा एवरीडे लोगों को ला रहा था और चर्च बहुत ही बढ़ रहा था। और जब चर्च बढ़ता है तो प्रॉब्लम भी बढ़ती है, काम भी बढ़ता है। अगर काम के लिए लोग नहीं होंगे तो जो लीडर हैं चर्च का, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो जो स्पिरिचुअल काम खुदा ने दिया है वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास दूसरे काम आ जाते हैं। इसीलिए खुदा ने जैसे एक शरीर बनाता है, खुदा ने ऐसे ही कलीसिया को बनाया है। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। हाथ, कान, नाक, मुंह, सबका अलग अलग काम है। कोई काम खुदा के घर में छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी स्पिरिचुअल काम ही करे, जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो किचन में ही काम करे, पर गॉड हैज गिफ्टेड अस, खुदा ने हम सबको ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए हैं। मैं नहीं ये कर सकता, पर खुदा ने बचपन से इस भाई को ये गिफ्ट दिया था। जब ये ढोलक भी नहीं था तो वो ये टेबल पर बजाते थे, है। जो भाई रोशन है, जो म्यूजिक का करते हैं, मुझे म्यूजिक का कुछ भी नहीं आता। ये खुदा का काम है। खुदा ने पहले से ही किसी को कुकिंग में, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी को पीछे साउंड के ऊपर, ये सब खुदा के काम है और खुदा ही हमें एक करता है। पर जैसे खुदा काम करता है वैसे ही शैतान भी चुप नहीं रहता। शैतान की पहले दिन से ये प्रॉब्लम रही है। कोई इंसान खुदा के पास आएगा तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लाता है। वचन के इस हिस्से में हमने कलीसिया में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा। आपको मालूम है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ईच चर्च में कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आता है। आपको दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप है जो यूनानी यहूदी जो थे ना, वो ग्रीक बोलते थे। वो क्या था, जैसे ये लोग यहूदियों को खुदा ने बखेर दिया था। ये दूसरी यरूशलेम से निकलकर दूसरी कंट्रियों में चले गए थे और पास ओवर के समय पर ये वापस यरूशलेम आते थे। और जब पास ओवर के बाद प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी गई और जिंदा उठाए गए और फिर पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा और बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, तो ये लोग में भी उनमें से हैं। और ये लोग जो हैं ये हिब्रू भाषा नहीं समझते, क्योंकि ग्रीक जो थी ना वो बहुत फेमस लैंग्वेज थी वहाँ पर। सभी जैसे इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड है, वैसे ही ग्रीक जो थी ना, अलेक्जेंडर ने पूरे संसार में ग्रीक, वो चाहता था कि सब कुछ ग्रीक बन जाए। और वो जो ग्रीक लोग थे वो हिब्रू, उनके जो पेरेंट्स थे वो चले गए थे दूर, वो भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। पर जब चर्च में आए हमने देखा बुक ऑफ एक्ट में पहले क्या था, विश्वासी एक मन हो गए थे। वो अपना सब कुछ बेचकर चेलों के चरणों में लाकर रख देते थे। उनका सब कुछ जो था वो एक हो गया था, कोई फर्क नहीं रह गया था। खुदा हमें धर्मों से निकालकर, जातों से निकालकर एक कर देता है। पर यहां पर हम देखते हैं
बड़ा अच्छा चर्च चल रहा था, एक मन लोग होकर प्रभु की प्रेज कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं आत्मा में बढ़कर। पर यहाँ पर एक ट्रबल आई, और वो ट्रबल जो है ना, वो आज का जो हमारा मैसेज का थीम है, वो द चर्च एंड मिनिस्ट्री। वो कोई भी स्ट्रगल चर्च में आएगी, याद रखना खुदाबंद जो है, ये चर्च किसी इंसान की नहीं है, ये खुदाबंद की चर्च है। और खुदाबंद खुद उस चर्च के लिए विजडम देता है कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, देयर इज 5 रीजंस। उस डिवीजन के पीछे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, पर उसके पीछे 5 रीजंस हैं। इस प्रॉब्लम की जो वजह है वो सिर्फ यही नहीं है, उसके पीछे 5 रीजन है। जो जैसे गाड़ी में रेड लाइट आती है ना, तो हम सिर्फ देखते कि एक रेड लाइट आ गई, पर हम ये नहीं देखते कि वो रेड लाइट क्यों आई है, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे तो रेड लाइट नहीं आएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 रीजन क्या है। सबसे जो बड़ा रीजन है वो चर्च की ग्रोथ जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है। और ग्रोथ के मुताबिक जो लीडर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो नहीं है। और अगर थोड़े से आदमी सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। वो अपनी कोशिश कर सकते हैं पर वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो रीजन है उसका, यहाँ पर हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हिब्रू ज्यूज थे, एक ग्रीक ज्यूज थे। हिब्रू जो थे वो यरूशलेम के इलाके के पास पास और यरूशलेम के बीच में रहते थे, और वो लॉ भी जो था उसे भी फॉलो करते थे, और उन्हें इस बात पर प्राउड भी था कि हम लॉ को फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं, वो प्राउड भी करते थे उस पर जो दूसरे थे उन्हें लगता था कि ये सब कुछ अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर हम कुछ एक्सीडस चैप्टर 22 वर्स 22 देखें तो खुदा के वचन में ये था कि आप किसी विधवा या अनाथ को तंग ना करें। खुदा के वचन में जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, कुछ उसका 22 चैप्टर और उसकी 22 आयत, 112 पेज है ओल्ड टेस्टमेंट में, अगर आप ढूंढ रहे हैं पंजाबी में, उसमें लिखा है तुसी किसे विधवा या अनाथ नू तंग ना करना। और यहाँ पर जो डिवीजन भी हुई है उसका कारण क्या था कि ये लोग जो थे वो कह रहे थे कि जो इनको मिल रहा है हिब्रू विधवाओं को, वो ग्रीक विधवाओं को नहीं मिल रहा। और व्यवस्था सार डिटोरनमी चैप्टर 10 वर्स 18, यहाँ पर खुदा के बारे में लिखा है कि वो अनाथां ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ कपड़ा ਦਿੰਦਾ है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है जो कुछ और करे और हमें कुछ और बताए। वो खुद पहले करता है, उसने खुद पहले प्यार किया, फिर हमें प्यार करने को बोला। उसने हमें माफ किया, फिर हमें भी माफ करने को बोला। और यहाँ पर खुदा व्यवस्था सार डिटोरनमी चैप्टर 10 वर्स 18 में हम देखते हैं कि खुदा खुद जो अनाथ और विधवाएं थी उनके साथ न्याय करता था, उनकी जरूरत को पूरा करता था। और वैसे ही फिर हमने कूच में पढ़ा कि खुदा चाहता था कि वैसे ही उसके लोग भी जो है ना वो विधवाओं और अनाथों की मदद करें। पर आप जानते हैं ना, जब कोई हेल्प आती है तो लोग उसकी एडवांटेज भी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हेल्प को मिसयूज करते हैं, और इसी वजह से तिमोथियस में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अगर कोई विधवा ऐसी है जिसका बेटा है या कोई भाई है या बहन है जो उसकी मदद कर सकता है, वो सपोर्ट के लायक नहीं है। पर अगर किसी का कोई नहीं है तो वो उसे सपोर्ट दी जाए। तो ये बातें जो चर्च में होती थी, पर उसकी वजह में शैतान ने क्या किया, चर्च को डिवाइड करना चाहा।
उसने चर्च की डिवीजन करनी चाहिए कि ये चर्च जो है टूट जाए। तो दूसरी पहला था कि चर्च की ग्रोथ हो रही थी, दूसरा था हम दो ग्रुप देखते हैं और ग्रुपों के दिलों में ये डाल दिया कि आप जो है ये देखो अपना ही कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लोगों की केयर कर रहे हैं, शैतान की जो चाल थी। और तीसरा जो रीजन था वो था लिटिल हेल्प। डिसाइपल्स के पास मैंने बोला कि वो इतनी हेल्प नहीं थी कि वो सब कुछ खुद कर पाए। और खुदा ने इस बात को ऐसे दिया कि जैसे मोसेस अकेला करता था और थक जाता था काम, वैसे ही खुदा चाहता था कि ऐसे लीडर्स आए जो, देखो चर्च दो काम कर रही थी, एक तो लोगों को जो फिजिकल नीड है वो प्रोवाइड कर रही थी, दूसरा जो स्पिरिचुअल नीड है वो प्रोवाइड कर रही थी। अगर स्पिरिचुअल खाना देने वाला फिजिकल खाना देना शुरू कर दे तो स्पिरिचुअल खाना कैसे मिलेगा? इसके लिए जरूरी था कि कुछ ऐसे लोग आए जो फिजिकल जो साइड है उसकी टेक ओवर कर लें, ताकि जो स्पिरिचुअल साइड है डिसाइपल उसकी टेक केयर कर सके। और प्रभु ऐसे लीडर प्रोवाइड करता है जिनके साथ फिर वो इजी हो जाता है। और जो फोर्थ रीजन था इस डिवीजन का वो था कि ये ऑर्गेनाइज्ड वेल नहीं हुआ था। जैसे डिसाइपल्स चाहते तो पहले ऑर्गेनाइज कर सकते थे कि ग्रुप्स को बोलते कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। जैसे हम अपनी चर्च में हमने कल मैसेज भेजा कि भाई वॉलंटियर नहीं है, आप सब ने मैसेज देखा होगा, देखा था? कितने लोगों ने रिटर्न किया? किसी ने मुझे रिटर्न कर कर पूछा कि भाई कौन से एरिया में आपको काम चाहिए? मैसेज सभी ने देखा पर किसी ने रिटर्न नहीं किया। और आई हैव नो आइडिया कि कौन कल को कहां पर होगा, कौन नहीं होगा। एंड मैं दुआ कर रहा हूं, खुदाबंद तेरी चर्च है, मुझे मालूम है तेरा काम रुकेगा नहीं, हो जाएगा। पर अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें कि भी पास्टर जी आप फिक्र ही नहीं करनी, 10 o'clock आपने पीछे साउंड की तरफ नहीं जाना, आप अपने प्रेयर रूम में जाओ, मैसेज से पहले आप प्रेयर रूम में जाओ, आपका कोई काम नहीं है इधर। हम 10 बजे जाएंगे, पीछे सारा काम करेंगे, आपने नहीं करना जी। तो जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं वचन में बैठूंगा, तो खुदा से बातें कर कर आपके पास क्या लेकर आऊंगा। अगर सारी सेटअप पहले आकर मैं करूंगा, पीछे जाकर मैं ऑन करूंगा और आपको फोन करूंगा भाई टाइम हो गया जल्दी से आकर आप अभी स्विच ऑन कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऑर्गेनाइज हो पूर्ण तौर पर तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि भाई पास्टर जी नेक्स्ट वीक के लिए मुझे बताएं कौन सा काम है। अगर दूसरी बेटियां जो उधर बैठी हैं हमें सिखा दें, नेक्स्ट वीक वो आराम कर लें, हम उस टेबल पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा काम बढ़ गया है। बाद में अभी हम थोड़ा क्लीन करेंगे, इसे साफ करेंगे, वो काम बढ़ गया है। तो अगर आप लोग मैसेज को रिप्लाई करें और उसके साथ मुझे मालूम हो जाएगा कि आई हैव नो वरीज, वैसे तो मुझे फिर भी वरी नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा का काम है, खुदा रुकने नहीं देगा। पर इट इज ऑलवेज बेटर ऑर्गेनाइज हो जाए कि भाई ये काम मेरे हिस्से है, ये काम मेरे हिस्से है, और आई हैव नो वरीज, मैं अपना रूम में बैठा दुआ कर रहा हूँ और मुझे सर्विस के समय पर आकर कि भी मैंने प्रार्थना कर ली और अभी शुरू करते हैं। और जो पांचवा रीजन था वो था बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म। अगर आप देखें वो पहला वर्स देखेंगे, उसमें आप देखेंगे दो बातें हैं, ग्रोथ हो रही है और साथ में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला कि शायद डिसाइपल को नहीं लगता कि वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, पर कलीसिया को लग रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। कैसे? वो देख रहे हैं कि भाई जो हिब्रू जो विधवाएं हैं उनको जो सपोर्ट मिल रही है, वो क्या लिखा वचन में, वो कहते हैं बड़बड़ाउन लगे कि उन्हां दियां विधवावां दी रोजाना भोजन वंडन समय लापरवाही की जाती है। सो सम टाइम वी डोंट थिंक कि फेवरेटिज्म है, पर जब किसी आदमी को कुछ मिल रहा है और दूसरे को वो नहीं मिल रहा तो उसके दिमाग में क्या आएगा
कि दिस इज क्रिटिसिज्म, फेवरेटिज्म हो रहा है, उसे तो हेलो हो रही है और मुझे कभी हेलो नहीं हुई। और अगर कोई बात किसी के पास आती है और अगर हम उसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो उससे क्या होगा? शैतान को कभी कोई मौका नहीं लगेगा। क्योंकि चेलों ने कैसे इसे हैंडल किया हम दूसरी आयत में देखते हैं। इसलिए 12 प्रमुख चेलियां ने विश्वासियों की सारी संगत ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। And that's what I think sometime I feel in our church is same problem. Even though help ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, अगर आप पहले से ही 3 दिन पहले बोल दें, पास्टर जी आप सबको मालूम है हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 3 दिन पहले बोल दें कि मैं टेबल पर हूँ, मैं पीछे साउंड में हूँ, मैं ये करूँगा पास्टर जी, मैं बाद में क्लीन करा कर जाऊँगी जंग जाऊँगा, तो उससे क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगी। मैं संडे को फ़ोन करता हूँ, पास्टर जी ने मैसेज डाला प्लीज़ बुक करा लें कौन कौन आएगा। कुछ लोगों ने मुझे बोला 1 वीक पहले, कहते हम आना चाहते थे, हमने बुकिंग नहीं कराई, तो हमने सोचा कि अब तो आदमी ज़्यादा हो गए तो हम नहीं आते। मैंने कहा बहुत सी चेयर हैं, पर मैसेज आता है आपने आना भी होता है। फिर मैं सैटरडे रात को आप लोगों को फ़ोन कर पूछता हूँ भाई आप कौन कौन आ रहे हो, वो भी आप मैसेज नहीं करते कि हम आ रहे हैं, हमारा नाम ऐड कर लो, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे काम ईजी भी हो जाता है और शैतान को मौका भी नहीं मिलता। और फिर चेलों ने उन्हें बताया जो सिचुएशन थी कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। उन्होंने प्रॉब्लम को ऐसे नहीं बोला कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बोला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और फिर वो पवित्र आत्मा जो लीड कर रहा था, तो उन्होंने ही प्रॉब्लम के लिए रास्ता खोला। और फिर चेलों ने क्या कहा 3 आयत में, इसलिए भरावो अपने विचों 7 भला आदमियां नूं चुन लवो ਜਿਹੜੇ बुद्धि ਅਤੇ पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होण, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस काम ਦੇ ਲਈ नियुक्त कर देवांगे। और जिस वक्त इन लोगों को नियुक्त किया गया, उनमें क्या देखा गया? जब पवित्र आत्मा इंसान में होता है ना, तो वो पक्षपात नहीं करता। उसे मालूम होता है कि आई विल नॉट सी कि भाई ये हिब्रू हैं और ये ग्रीक है और ये कौन है। और परमेश्वर के आत्मा में भरते जाना है, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हम एक को नेग्लेक्ट करें और दूसरे को ऊपर करें। और वो कहता है कि आप ऐसे आदमियों को चुनो, और उन्होंने 7 ऐसे आदमियों को चुना। क्या वो स्पिरिचुअल काम के लिए चुने गए थे? फिजिकल काम के लिए चुने गए थे। पर फिर भी जो परमेश्वर की आत्मा से भरकर, चाहे स्पिरिचुअल काम है, मैं रॉकी व्यू में देखता था, यहाँ पर एक भाई थे रान, वो चर्च के जैसे कोई भी काम होता था ना, आप उसे बोल दो कि झाड़ू लगा दो, वो झाड़ू लगा देंगे। आप उन्हें बोलो यहाँ पर पेंट कर दो, वो पेंट कर देंगे। पर वो अपने घर में लोगों को बुलाकर बाइबल स्टडी भी कराते थे। स्पिरिचुअल थे, पर खुदा के लिए हर वक्त अवेलेबल थे। उन्होंने पास्टर को बोल रखा था, पास्टर I don't want you to give right to people. I don't want you to do those things. Anytime, if somebody call you, please call me and I will take care of it. और पास्टर को मालूम था कि ये भाई है जिसे मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, मुझे भागने की जरूरत
नहीं है। चर्च, अगर ऐसा हो जाए, अगर स्पिरिचुअल लोग बैठकर दुआ करें और खुदा के सामने बैठकर वो खुदा से मांगे और खुदा पता नहीं क्या क्या देगा, पर अगर स्पिरिचुअल लोग इन कामों में टाइड अप हो जाएं, तो वो जो परमेश्वर ने स्पिरिचुअल काम दिया है वो नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं, क्योंकि अर्ली चर्च से हम सीखते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी चर्च प्रार्थना करने वाली चर्च हो, हमारी चर्च अर्ली चर्च की तरह ग्रो होने वाली चर्च हो, हम एक मन और एक सोच हो, कोई शैतान की बात हमें डिवाइड नहीं कर पाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है हम बैठकर एज ए फैमिली से सॉल्व कर पाए। और चेलों ने ऐसा ही किया। और फिर चेलों ने 4th आयत में कहा, फिर ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ प्रचार ਦੀ सेवा ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ रहांगे। हमें फ्री कर दें आप इस तरफ से। और जब मैं सबैटिकल से वापस आया था तो मुझे पास्टर जी ने बोला, पास्टर जॉनसन ने, पास्टर जी आप 3 मंथ यहाँ पर नहीं थे, 3 मंथ में एक दफ़ा भी चर्च नहीं रुका। आप सोचते हो कि आप नहीं जाओगे पीछे तो जी चर्च रुक जाएगा? आपने पीछे साउंड रूम में नहीं जाना है। आज मैं साउंड रूम में नहीं गया, आज मैं वहाँ खड़ा परमेश्वर की वडियाई कर रहा था, प्रेज कर रहा था और बड़े आनंद में था। क्यों? क्योंकि साउंड रूम में अनाफ आदमी थे। मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी अगर वहाँ पर लोग होंगे मैं नहीं जाऊँगा, पर अगर कोई लोग नहीं होंगे तो फिर मैंने तो करना ही है। अगर कोई चेयर लगाने के लिए नहीं आएगा तो मैंने तो लगानी ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं तो करूँगा ही, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए जान दी है। मैं किसी इंसान के लिए नहीं करता, मैं खुदा के लिए करता हूँ। और अगर आप हमें, मुझे और लीडर्स को फ्री करेंगे, हम और भी खुदा के चरणों में बैठेंगे। और 5वीं आयत में हम देखते हैं, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤੀਫਨਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ। ਸੋ 7 ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, 5 लोगों के नाम हम नहीं देखते आगे जाकर, सिर्फ 2 लोगों के नाम देखते हैं जो आगे जाकर, स्टीफनस को हम अगली वीक में भी जाकर देखेंगे कि वो कैसे काम किया, उसने आत्मा में भरकर कैसे खुदा ने उसे यूज किया। और फिर प्रमुख चेलों के सामने वो लेकर आए और प्रमुख चेलों ने फिर क्या किया, उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें ब्लेस कर अदरवाइज कि उन्हें अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी ओवर, कि भाई ये लोग हैं जो आपको बोलेंगे आगे आप वो करते जाएं। और उन्होंने वो अथॉरिटी जो थी स्वीकार कर ली। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? 3 बातें हैं 7 वर्ष में। उसका बेनिफिट क्या हुआ? पहली बात क्या हुई? परमेश्वर का वचन फैलता चला गया। अगर वो लोग काम नहीं करते तो चेले अगर परमेश्वर का वचन छोड़कर दूसरा काम करते तो परमेश्वर का वचन फैलना था? नहीं फैलना था। पर ये सब होने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर का वचन फैलता गया और चेलों की गिनती भी बढ़ती गई। नंबर 2, चेलों की गिनती बढ़ती गई। और नंबर 3, बहुत सारे पुरोहित जो प्रीस्ट थे वो भी प्रभु के पास आ गए। चर्च, आपको खुदा ने क्या गिफ्ट दिया है? मैं हमेशा कहता हूं, हम में से कोई भी प्रभु के पास अपने आप नहीं आया। खुदा ने हमें मां की पेट से अपने लिए अलग किया है और आप सबके पास कुछ ना कुछ है। क्या आप उसे यूज कर रहे हो? जो खुदा ने आपको दिया है, हफ्ते में 1 दिन, 6 दिन आप काम पर जाते हो फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए। जॉब पर 8 घंटे जाते हो 8 घंटे, पूरा 8 घंटे काम करते हैं।
खुदा के लिए हफ्ते में 2 घंटे काम करोगे तो खुदा रिवार्ड नहीं देगा। यहां पर सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए। ये नहीं सोचें कि ये चर्च है, बस ये है, कुछ लोग ये कर लेंगे। नो, वी आर ए फैमिली, एक घर है, और घर में सभी की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप ऐसे ही पकड़ लें, खुदा ने जो दिया है, आप बोले आकर, पास्टर जी खुदा ने मुझे ये दिया है। एक आदमी एवरी वीक वो काम करता है, हम रोटेट कर दें उसे कि नेक्स्ट वीक यू डोंट हैव टू सिट देयर, वंदना यू डोंट हैव टू सिट देयर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, नीतू यू डोंट हैव टू डू दिस। हमारे पास एक्स्ट्रा पीछे आदमी होंगे। खुदा ने आपको जो दिया है मिनिस्ट्री के लिए, क्या आप उसे यूज कर रहे हो? रिमेंबर, जो चेलों को सेवा मिली थी वो फ्री होकर, जरूरी था कि वो फ्री हों और तभी वो काम कर सकें। क्या आपको खुदा ने स्पिरिचुअल साइड पर काम दिया है? जब मैं बहनों को कहता हूं, कुछ लोग मुझे मालूम है जिनको खुदा ने स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया हुआ है, वो लोगों के साथ स्पिरिचुअल बातें करते हैं और वो खुदा के पास आ जाते हैं। मैं बहनों को कहता हूं कि इन्हें किचन में मत लगाओ, क्योंकि खुदा ने इन्हें किचन के लिए नहीं रखा। इनको छोड़ दो प्रभु के वचन के लिए, इनको प्रभु का वचन बताने दो। और जिनको खुदा ने किचन में रखा है वो खुशी से बोलें कि आप वरी नहीं करें, आप फ्री हो जाएं और हम किचन में जो है ना वो कर लेंगे। हम सब घर में भी करते हैं। अगर हमें रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी हम वहां भी करेंगे 8 घंटे। यहां सिर्फ वंस एंड वाइल, और वो भी प्रिविलेज होती है कि खुदा के लिए कुछ करने के लिए मौका मिलता है। Are you living and serving in obedience to his will? क्या आप खुदा को उसकी आज्ञाकारी में, उसकी इच्छा में सर्व कर रहे हैं? क्या आप लीडर्स को फ्री कर रहे हैं? आई होप नेक्स्ट वीक मुझे किसी को याद नहीं कराना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड करा ली। आई होप नेक्स्ट वीक मेरे पास आप फोन कर कर पहले कहोगे, पास्टर जी यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट। हम 10 बजे चर्च शुरू करने जा रहे हैं अगले मंथ से। हम हमेशा 1 घंटा पहले आते हैं। गर्मियां हैं, अगर 10 बजे होगी तो हम 9 o'clock यहाँ पर होंगे। और अगर आप आएंगे तो मैं प्रार्थना करने के लिए पीछे चला जाऊंगा। आई प्रॉमिस आई विल नॉट डू एनीथिंग। पर अगर आप नहीं आएंगे तो आई विल कंटिन्यू द वर्क आई एम डूइंग। मेरा कुछ नहीं कम होगा, मेरा वेट कम नहीं होगा, मैं काम करते थकूंगा नहीं, पर जो ब्लेसिंग है वो आप खो देंगे। खुदा मुझे ताकत देगा, मैं करूंगा, पर मैं चाहता हूं आप खुदा के लिए आगे आए और खुदा का काम ऐसे बढ़ता जाए। God has called you for a special purpose. Let's do it together as a family. Amen. Let's pray. प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, ऐसे ही आत्मा से जैसे आपने डिसाइपल्स को लीड किया, हमें लीडर्स को भी लीड करें खुदावंद, अपने बच्चों को भी लीड करें खुदावंद। हमारी चर्च भी अर्ली चर्च की तरह ऐसी ही चर्च हो जहाँ पर हम सब मिलकर खुदावंद आपके लिए पूरे मन से काम करें खुदावंद। जैसे भाई प्रताप ने कहा, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। खुदावंद खुशी के साथ हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे खुदावंद। हम चर्च में आते हैं खुदावंद, आपने हमारे लिए जान दी और खुदावंद आपने हमें प्यार किया खुदावंद। आप हमारे लिए मरे कि हम आपके लिए जी सकें खुदावंद। खुदावंद, मैं आपके ईच बच्चे के लिए ताकत चाहता हूं खुदावंद। प्रभु, जो भी तेरे बच्चों की रास्ते की रुकावट है खुदावंद, वो अपने आप को अवेलेबल कर दे
और खुदावंद हमारे पास सभी के सभी वॉलंटियर इतने हो जाएं कि हमें रोटेट करना पड़े कि इस वीक आपको हम सेवा नहीं दे सकते। तब प्रभु आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, हमें भी खुदावंद विजडम दे, जैसे डिसाइपल्स ने इस कंसर्न को आगे रखा कि हमारा जो काम है वो स्पिरिचुअल है। और खुदावंद मैं अपने लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ कि खुदावंद मैं भी चर्च को बोल सकूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे अपना प्रभु के चरणों में बैठना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मैंने वचन तैयार करना है। तो प्रभु आप हमें गाइड करें और खुदावंद शैतान को कभी कोई मौका नहीं मिले कि किसी तरह का चर्च में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आए, बल्कि खुदावंद हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ऐसी हो जाए कि हम प्रभु शैतान का डट कर मुकाबला करें और खुदावंद एज ए फैमिली, एज ए बॉडी हम एक मन और एक सोच होकर खुदावंद आपकी आत्मा में वो सब कर पाएं जिसके लिए आपने हमें माँ के पेट से चुना। और खुदावंद आपके नाम को हमारे जरिए जलाल और महिमा मिले। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आप हमारी दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।